हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंडे। होप आप सब लोग की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एज नाउ वी ऑल नो दैट द एग्जामिनेशंस आर क्वाइट क्लोज, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सिलेबस कंप्लीशन वाली स्टेज पर तो पहुंच ही चुके होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नाउ कंप्लीटेड दैट सिलेबस फॉर all the subjects. Now, the thing that is very important at this particular point of time is our revision. And as I have always believed, like even जब मैं खुद भी पढ़ाई किया करती थी, that it's very important to increase the number of revisions, because what happens is it is quite human कि जब हम पढ़ते हैं थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं, और उस चीज को एग्जामिनेशन टाइम तक याद रखने के लिए जो चीज हमने बहुत पहले कभी पढ़ी थी उसकी रिविजन करना, उसको बार बार पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. So that is very important for all of us to revise the syllabus, to revise all the top chapters which are very important for the examination, so that we become thorough with the concepts, we learn the provisions, and we are able to perform well in the upcoming examinations. So here I am going to take a revision session for the particular head is PGBP for upcoming May 23 examinations. Now, when I talk about the examinations, let us have a brief discussion about which topics are important, and then we'll start with the revision. I'll not take much of the time because we need to complete the full head. So, when I talk of heads of income in CA Inter specifically, the syllabus of income tax, heads of income forms a very important part. And from the heads of income, if I say PGBP is very important, because when you see, like if you have gone through the past attempts, past examination papers, you all must have noticed that the first question, which is compulsory for us in the examination, is मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन पीजीबीपी. हाँ, उसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स और प्रोविजंस होते हैं, but it is mostly, or you can say 80 to 90% dependent on this particular head. So it becomes of utmost importance that we focus this head a lot, because first of all the question is compulsory, and second, if we study this head very in a particular technique or in a particular manner, it is a very simple head. I know that talking of PGBP, we think it's quite lengthy, it's a very long head, yes, no doubt, but it is very simple. तो अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से और एक पैटर्न में पढ़ें तो ये हम लोगों के लिए बहुत इजी हेड हो जाएगा, which basically means that हमारा जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. So with this, let us start the revision of the head profits and gains of business or profession. Now, first of all, what does this particular head talk about? This particular head talks about how to compute the profit or gains of a person or an assessee who is engaged in any business or profession. अब हम लोग प्रॉफिट निकालना बहुत बचपन से जानते हैं. जब से हम लोगों ने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया, 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में हम लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना सिखा दिया जाता था, है ना. उस ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर हम ये हेड पढ़ेंगे, हम लोगों को ये बहुत ही सिंपल लगेगा. सो बिफोर डायरेक्टली गोइंग ऑन टू द सेक्शंस एंड प्रोविजंस एंड ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आई जस्ट फर्स्ट गिव a very brief technique of how you should understand this particular head, so that you do not face a very difficult thing to remember all the provisions. We all know that when you calculate profit or loss, अभी मैं कोई इनकम टैक्स, कोई पीजीबीपी, कोई कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही, मैं एकदम सिंपल बात कर रही हूँ जो हमने 11वीं के अकाउंट में पढ़ा है, कि जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तब हम एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया करते थे. यहाँ पर हमारी इनकम होती थी, है ना, सेल्स इनकम और जो भी सारी हमारी इनकम होती थी, इस तरफ हमारे सारे एक्सपेंसेस होते थे, एंड वी यूज्ड टू रीच टू आवर प्रॉफिट, राइट. पहले जीपी फिर एनपी, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, हम सबको अच्छे से आता है, राइट. This is the whole concept of PGBP as well, that you are supposed to calculate the profit or gain from the business that you have conducted during the previous year. Now, how to calculate that profit? तो हम लोग अभी तक जो प्रॉफिट निकाला करते थे, हम लोग अभी तक जो प्रॉफिट निकालना सीखे हैं सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करके, वो हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखा है ना. अक्रूअल कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह का कैलकुलेशन करना, और कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज ऑनवर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमने किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखा है? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखा है. When we talk of PGBP, आपको सिर्फ छोटा सा चेंज ये करना है कि आपको इनकम माइनस एक्सपेंसेस तो करना ही है, लेकिन हम सिर्फ
उन्हीं इनकम्स और उन्हीं एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे जो कि पीजीबीपी हेड के हिसाब से इनकम और पीजीबीपी हेड के हिसाब से एक्सपेंसेस हैं। मतलब अगर कोई इनकम है जिसको सेक्शन हेड पीजीबीपी में इनकम नहीं माना गया है या बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं माना गया है, तो हम उसको इस हेड में नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर कोई खर्चा है जिसे पीजीबीपी ने बोला है कि नहीं, ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसको आप माइनस नहीं कर सकते, तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। सो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इज विच इनकम्स आर टू बी एडेड and which expense are to allowed to be reduced, only that you have to keep in mind. Automatically आपका हेड जो है वो बहुत सिंपली और बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सो विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन। अब एक बहुत बेसिक सा फॉर्मेट होता है, हर पर्टिकुलर हेड में आप लोगों ने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा, सैलरी में एक फॉर्मेट पढ़ा होगा, हाउस प्रॉपर्टी में एक फॉर्मेट पढ़ा होगा। सिमिलरली आपके पीजीबीपी में एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन है। अगेन दिस फॉर्मेट is very easy to understand if we understand that this format only 10 or 20% of thing is done from our side। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट से हमको ये समझ आ जाता है कि हमको करना क्या है और हमारा एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है, और यू कैन से व्हाट एग्जैक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यू कैन से द पर्सन इज वांटिंग फ्रॉम यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विथ द नेट प्रॉफिट दैट यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, दिस इज द वे most of the questions are framed। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जितना भी प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपने उठा लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अब आपको सिर्फ ये करना है कि इनमें से वो चीजें हटा दो जो पीजीबीपी हेड ने मना करी और वो चीजें इंक्लूड कर दो जो पीजीबीपी हेड ने इंक्लूड करी। तो अब क्या करें, दो चीजों को किया जाएगा ऐड, दो चीजों को किया जाएगा लेस। Every profit and loss account has two heads, right? Income and expenses. So we are supposed to add two things, we are supposed to subtract two things, and that leads us to the profits and gains from our business and profession from the net profit as per books of accounts. So we added, there were two things which were required to be added. First is we will be adding the two things that are to be added and two things that are to be subtracted. The first thing that would be added is expenses that are disallowed as per Income Tax Act. So it is very easy to understand. See, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा एज पर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम लोगों ने एक्सपेंसेस डिडक्ट करे होंगे। नाउ एक्सपेंसेस व्हिच आर ऑलरेडी वी हैव सब्ट्रैक्टेड बट डिसअलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट विल बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड but have not been subtracted in the profit and loss as per the books of accounts would be reduced। तो दो चीजें याद रखी हमने एक्सपेंसेस की, वेरी सिंपल। जो एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं अलाउड है, उनको ऐड बैक कर दो। जो एक्सपेंसेस हमने माइनस नहीं किए लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं इसको तो आपको माइनस करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। मूविंग ऑन टू द इनकम साइड, अगेन इसी का ऑपोजिट हमको इनकम में करना है। ऐसी इनकम्स जो कि पीजीबीपी हेड में इंक्लूड होनी चाहिए पर हमारे पी&एल में नहीं आई है, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड। सो इनकम्स चार्जेबल अंडर दिस हेड बट नॉट इंक्लूडेड इन द P&L आर टू बी एडेड, एंड इनकम्स which are not chargeable, incomes which are not chargeable under the head PGBP but are included in our profit and loss। जैसे इसका बहुत बेसिक एग्जांपल आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। आप सब लोगों ने P&Ls बनाए हैं, तो हम लोग एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हमारे P&L में लिखते थे क्रेडिट साइड पर, जबकि जब अगर हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है, इट्स नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। सो इफ दैट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज अपीयरिंग इन योर क्रेडिट साइड ऑफ P&L, वो आपको हटाना है, और अगर नहीं है तो ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड व्हेनेवर यू आर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सो वेरी इजी, हमारा हेड भी पूरा हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम एक्सपेंसेस के हेड को लेकर चलें अगर, तो हम एक बार पढ़ लेंगे एक्सपेंसेस कौन से अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है, इनकम्स कौन सी चार्जेबल है, कौन सी चार्जेबल नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर पाओगे। Then I'll also share another video in which I'll solve one question of PGBP in which I'll focus on the things that are to be
कीप केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये भी रिव्यू आता है कि मैम हम लोगों को प्रोविजन तो याद हो जाता है कि हाँ 10,000 से ऊपर का कैश एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिट डिसअलाउड होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहली चीज तो सारे प्रोविजन एक साथ, है ना। दूसरी चीज कि पढ़ते समय किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से सॉल्व करें ताकि हमसे कोई पॉइंट मिस ना हो, उसको कैसे प्रेजेंट करें, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको सेक्शन तो याद था कि हाँ ये चीज डिसअलाउ करना है, पता था, पर जब सॉल्व करने बैठे तब वो चीज में दिक्कत आ गई। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस अ लॉट, जस्ट रीडिंग द प्रोविजंस वुड नॉट हेल्प, है ना। सो वो चीज पे भी हमको उतना ही फोकस करना है। सो लेट अस स्टार्ट द रिविजन पार्ट टुडे। First of all, we will talk about the section that is what are to be included, section number 28, that is the charging section of PGBP head, that which incomes are to be included under the head PGBP. Now, when I talk of business and profession, the first thing that is to be kept in mind is business is something which a particular activity of trade or commerce or any adventure in the nature of trade or commerce, and profession is not specifically defined, but profession means something that requires a art or that basically requires a skill or a qualification by the person who is practicing that profession. For example, a doctor, he requires a particular skill, a particular qualification so that he can function or he can work as a doctor. So that is a profession. Moving on to profits. Profits are not a very small or a very narrow meaning under the Income Tax Act. It has a very broad meaning under the Income Tax Act. So profit includes anything that is in cash or in kind. आपको अगर आपके कस्टमर ने काइंड में कोई चीजें दी है तो भी उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल करके आपको इनकम में ऐड करना है। कैपिटल रिसिप्ट्स जनरली ऐड नहीं करी जाती है। वी ऑल जस्ट डिस्कस्ड कि अगर कैपिटल असेट बेच करके प्रॉफिट होगा, इवन दो इट इज अ बिजनेस असेट, बट इफ यू आर सेलिंग अ कैपिटल असेट देन यू विल इंक्लूड दैट प्रॉफिट अंडर द हेड पीजीबीपी। वॉलंटरी रिसिप्ट्स, अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई वॉलंटरी रिसिप्ट हुई है, इवन दो इट इज नॉट अ डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ योर सर्विस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जैसे कि लॉयर है कोई, उसने कोई केस लड़ा, फॉर एग्जांपल देयर वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इशू व्हिच वाज अ कॉमन इशू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ओ माय गॉड देखी है मूवी, तो उसमें जो केस चल रहा था इंश्योरेंस और वो वाली सारी चीजों का, वो प्रॉब्लम सिर्फ एक के साथ नहीं हुई थी कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लेम नहीं दिया। तो जब आप देखोगे लास्ट में बहुत सारे लोगों ने वो सेम केस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब बाढ़ आई थी तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा देने से मना कर दिया था। सो बेसिकली बहुत बार क्या होता है, कोई केस ऐसा चल जाता है जो जो व्यक्ति केस लड़ रहा है उसके साथ साथ भी किसी और को बेनिफिट कर जाता है। तो सपोज आई एम ए लॉयर एंड मैंने कोई केस फाइट किया जिसका जो डिसीजन आया वो मेरे क्लाइंट के सपोर्ट में आया, फाइन, लेकिन किसी और व्यक्ति को भी उससे बेनिफिट हो गया एंड उन्होंने आउट ऑफ लाइक ए जेस्चर और ग्रेटिट्यूड मुझे कुछ ला करके दे दिया। उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, मेरा कोई रिलेशन नहीं था, कोई क्लाइंट प्रोफेशन वाला रिलेशन नहीं था, लेकिन वो जो पैसा मुझे मिला है वो मुझे मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से मिला है। सो भले ही वो वॉलंटरी रिसिप्ट है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन माय इनकम। सो दिस इज समथिंग, सी एग्जांपल भी हम लोगों ने वही वाला डिस्कस किया लॉयर वाला, सो वो इनकम में माना जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड इज इमटेरियल। सो अगर आपने आपको इनकम मिली और फिर आपने अगर उस सबको कोई मतलब आपके से फॉर एग्जांपल कुछ बेनिफिट के लिए यूज कर लिया, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको अप्लाई किसी और चीज के लिए कर दिया है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसेस, द like best thing how to compute, if you have two businesses, the particular section states that आप दोनों businesses की इनकम को अलग अलग से कैलकुलेट करो और फिर उन दोनों ही इनकम्स की अलग अलग प्रॉफिट को ले जा करके लास्ट में ऐड कर दो, ताकि आपका टोटल पीजीबीपी का इनकम आ जाए और आपके दोनों बिजनेसेस की इनकम्स और एक्सपेंसेस भी ट्रेसेबल रहे, है ना, कि किधर कितना जाएगा किधर कितना जाएगा वो ट्रेसेबल रहे। दिस इज व्हाट यू हैव टू सपोज टू डू। नाउ moving on to the next section, that is section number 28 that we discussed, income chargeable under this head. Which incomes are to be included under section 28? First of all, income from business or profession, any compensation received by a person like managing director को अगर कोई compensation मिल रहा है, ये सारी जो भी compensations होंगे वो सारे आपके इसी पर्टिकुलर हेड में चार्जेबल होंगे। मूविंग ऑन,
to the incentives received by assessee carrying on export business अगर आप कर रहे हैं, उससे जो भी इंसेंटिव रिसीव होगा वो भी सारा हमारा इसी हेड में चार्जेबल होगा। एक्सपोर्ट्स की कस्टम्स की कोई ड्यूटीज वगैरह है, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है, ये सारी चीजें again because it is relating to your business, so all the incomes which are related to your business will be chargeable under this particular head. Value of any perquisite benefit that we already discussed. Profits include things in kind as well, so any benefit or any perquisite which is received by you during your profession or your business will be chargeable under this head. This is a very important point. This I also discuss every time whenever I teach salary head. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, क्या होता है बहुत सारी चीजों से कुछ चीजें निकल के आती हैं। whenever you are studying income tax and specifically heads is to be studied as a whole. okay, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हमने पीजीबीपी पढ़ लिया तो हम सिर्फ पीजीबीपी के क्वेश्चंस पढ़ लें, कैपिटल गेन पढ़ लिया तो कैपिटल गेन। नो, इट इज अ पार्ट ऑफ उसी असेसी के 5 अलग अलग हेड्स हैं। वो 5 हेड सेपरेट नहीं है, अलग अलग पढ़ करके आपको उनको लिंक करके आना जरूरी है ताकि आप आगे चल करके उस नॉलेज को अप्लाई बेटर तरीके से कर सको। तो ये पॉइंट हमेशा मैं इंक्लूड करती हूँ। whenever you are a partner of a partnership firm, you are not an employee. ओके, सो हम भले ही वर्ड सैलरी यूज करते हैं, ये मैं सैलरी हेड के साथ भी पढ़ाती हूँ, वो सैलरी कभी भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, वो सैलरी टैक्सेबल होती है हमारी पीजीबीपी हेड में, बिकॉज आई एम द पार्टनर, आई एम द ओनर ऑफ द फर्म। और अगर फर्म से मुझे कुछ भी पैसा मिल रहा है वो एक तरीके से मेरे बिजनेस से मुझे मिल रहा है, जब मैं पार्टनर हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दैट फर्म। सो बेसिकली you are supposed to tax that salary under the PGBP head, not under the salary head. This is to be kept in mind. Okay, now moving on, any sum whether received or receivable in cash or kind under an agreement for not carrying on an activity. So जो non compete agreements वगैरह बनते हैं उनमें अगर आपको कोई amounts receive हो रहे हैं, again that will be taxable under the head PGBP. Keyman insurance policy से अगर आपको being a business अगर आपको कोई वो मिल रहा है, अगर एज एन एम्प्लॉय मिलता है तो वो सैलरी हेड में चला जाएगा, बट एनी सम रिसीव बाय एन एसएससी as an employer under the Keyman insurance policy will be taxable under the head PGBP. Now this is a very important point. Fair market value of inventory on its conversion as a capital asset. इसी का opposite चीज जो है वो capital asset का एक बहुत important part होता है, conversion of capital asset into inventory. ये उसका उल्टा है। अगर हमारी inventory थी जिसको कि हमने अब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, तो सपोज वो कोई इन्वेंट्री थी, अब हमने इसको कैपिटल एसेट बना लिया, अब जब मैं इसको सेल करूंगी आगे चल करके, आज के 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी, वो जो कैपिटल एसेट है अब उसका गेन जो है वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। लेकिन जब तक वो इन्वेंट्री थी और तब से लेकर के कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होने तक के पीरियड का जो गेन है वो हमारे पीजीबीपी हेड में चार्जेबल टू टैक्स होगा। तो पीजीबीपी हेड में उस उतने पोर्शन की इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 35AD। 35AD सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन 35AD आई होप आप सब लोगों ने पहले भी कभी ना कभी सुना होगा। इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेसेस होते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेसेस की लिस्ट है, उसमें आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाता है। और क्योंकि आपका पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पीजीबीपी में एज एन एक्सपेंस आप डिडक्ट कर चुके हो, तो अगर आप ये एसेट आगे चल करके सेल करोगे तो देन दैट इनकम इज ऑल्सो चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल पीजीबीपी, नॉट कैपिटल गेन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. Moving on to the speculation business. What is a speculation business? It is very important that from the very beginning, if you are having two businesses, one of which is speculation business and another is non-speculation business, you calculate the profits separately and show them separately in your books of accounts and in your income tax return, because there are some rules regarding the speculation loss and non-speculation loss which specify that you cannot directly set off each and every loss with that particular income. जैसे हम लोगों ने जब कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के प्रोविजंस हम पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा हमें रूल्स दिए गए हैं कि कौन से लॉस को कौन सी इनकम के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिकली कंडीशन बोली गई है, तो हमें लॉस और प्रॉफिट को अलग अलग कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं अब हम that what is a speculation business. Speculation business is a business or a contract in which the commodity or stocks, shares, and anything which commodity are you trading in is settled otherwise than by way of an actual delivery, or you can say in simple languages जो शायद आप लोगों ने सुनी भी होंगी कभी, नॉन डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है। इसमें आपको कमोडिटी के सेल परचेज से ज्यादा उसके प्राइस एक्सचेंज के सेल के अंदर इंटरेस्ट होता है। यू नॉट डायरेक्टली investing
into the particular commodity खरीदने के लिए आप पैसा लगा रहे हो, ये जरूरी नहीं है, आप उसकी प्राइस एक्सचेंज के साथ खेलना चाहते हो, then it becomes a speculative transaction. So anything that is a non-delivery based transaction, except for some specific cases, you are set to. Okay, so what are the transactions that are not deemed to be speculative transactions? All the transactions, if they are done through recognized exchange or not with the like intention of speculating, है ना, speculation का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं. So speculation के अलावा किसी और इंटेंशन से अगर आपके ट्रांजेक्शन को इनकर किया गया है, देन इट इज अ नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल हेजिंग मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी. तो अगर आप प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने आप को सिक्योर करने के लिए ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो कि आगे चल करके जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो उससे मुझे नुकसान ना हो, तो हेज करने के लिए अगर आप ये कर रहे हो, तो फिर यू आर सपोज टू then that particular contract is not said to be a contract of speculation transaction. Similarly, any contract which is entered in a proper recognized exchange, then that particular contract is not treated as a speculative transaction. So trading in derivatives, if it is held in a recognized stock exchange, trading in commodity derivatives in the respect of commodity derivatives carried out in recognized stock exchange, again, then it will be not treated as a speculation transaction. However, requirement of chargeability of commodity transaction tax is not applicable in case of agricultural commodity derivatives. ये जरूर हमें ध्यान रखना है. इस पर लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आरटीपी में एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स का केस दिया हुआ था और लिखा था कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट चार्ज. सो हमें ध्यान रखना है कि इवन दो इट इज नॉट चार्ज, वो वाला केस यहाँ पर फॉल होगा, है ना. वो सीटीटी वाला कंडीशन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो ये हमारी इनकम्स है जो कि पर्टिकुलर हेड में इंक्लूड होंगी. नाउ वी विल टॉक ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर अलाउएबल अंडर द हेड पीजीबीपी. अगेन वेरी सिंपल एंड फटाफट हम सारे सेक्शंस को डिस्कस करते जाएंगे और हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते जाएंगे जो कि हमें एग्जामिनेशन में ध्यान रखने हैं. चलिए, so moving on to the deductions that are admissible under the head PGBP. Now again keep this in mind. शुरुआत करने से पहले ही टिप, हमारे इस पूरे रिवीजन लेक्चर में हम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखने वाले हैं, वो जरूर आप कहीं नोट करके रखिए, ठीक है. जैसे मैं स्टार्टिंग से बताती जा रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, ये जो सारी डिडक्शंस हम पढ़ने वाले हैं अभी सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक, ऑल दीज डिडक्शंस आर एडमिसिबल अंडर द हेड पीजीबीपी. ठीक है, मतलब ये सारे डिडक्शंस आप अलाउड है, आपको, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. अगर आपने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, इफ यू हैव ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड दीज डिडक्शंस देन देयर इज नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन योर क्वेश्चन. फाइन, लेट अस मूव. सो फर्स्ट सेक्शन 30, रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स. यहाँ पर हमारे जो सारे एक्सपेंसेस होंगे वो बिल्डिंग्स के ऊपर जितने भी किए हुए एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हमें डिडक्शन मिलेंगे. द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट ऑल द एक्सपेंडिचर्स शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर. The expenditures should not be of capital nature. Premises, if they are occupied by the assessee as a tenant, then you can claim rent वगैरह जो भी है आपका उस पर्टिकुलर हाउस पर, वो सब आप डिडक्ट कर सकते हो. अगर आप ओनर हो, where the assessee himself occupies, no notional rent is allowed. ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखना है. इनकम टैक्स में नोशनल एक्सपेंसेस का कोई अलाउंस नहीं होता है. अगर आपने बाहर कोई एक पेमेंट नहीं किया है, कोई एक्चुअल एक्सपेंस नहीं हुआ है आपके बिजनेस का, तो आपको उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. रिपेयर ऑफ द प्रीमाइसेस, अगेन इफ यू आर ऑब्लिगेटेड, अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको रिपेयर्स का खर्चा उठाना है उस पर्टिकुलर हाउस का, तो यू आर अलाउड टू क्लेम the repairs, reduction of repairs. But the point is that the current repairs would be allowed. Capital nature के जो भी repairs होंगे वो allowed नहीं होंगे, revenue nature के ही repairs allowed किए जाएंगे. If the premises is used partly for business and partly personal, then only the part of premises that is used for business purposes सिर्फ उसी का deduction allowed होगा. Similarly, section 31, section 30 और 31 बहुत छोटे छोटे और बहुत similar sections हैं. वहां पर हमने बिल्डिंग की बात करी, यहाँ पर प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी की बात होगी कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, कोई फर्नीचर है हमारे पास, तो उसको यूज करने का जो भी रिपेयर वगैरह का हमारा एक्सपेंस होगा, जो भी इंश्योरेंस वगैरह का हमारा एक्सपेंस होगा, वो सारा हम यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हैं. सो इफ यू आर हैविंग एनी such asset, then you can claim the expenses related to this particular asset as a deduction under section 37. Again, it will be on current repairs and not for the capital. So therefore, अगर
कोई रिप्लेसमेंट हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ये कैपिटल में चला जाता है, यहाँ पर इसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड. मूविंग ऑन टू सेक्शन 32, दैट इज डेप्रिसिएशन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर पीजीबीपी. अब पीजीबीपी में जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हमको किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है. सो आई विल जस्ट show you a very small points, or you can say these are notes that I have prepared for PGBP. If you, any one of you wants, I can share this with you. In this I have written down all the important points that are in very small, or you can say very short manner, so that you can just have a glimpse or an overview of all the particular sections or all the particular provisions before your examination. So that will be very very helpful for all of you. इसमें पूरा पूरा सेक्शन की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जैसे हमको क्विक ओवरव्यू चाहिए होता है कि हाँ सेक्शन 30 में क्या है, 31 में क्या है, 32 में क्या है, सो हमको बहुत इजीली वो सब इसमें मिल जाएगा. सेक्शन 32 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देखें. सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी क्लेम विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. मैंडेटरी क्लेम का मतलब है इवन इफ यू डू नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन इन योर रिटर्न, यू हैव टू. लाइक इट्स नॉट ए चॉइस कि हम खर्चा क्लेम करें कि नहीं करें. ऐसी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफी कम है जो आगे रह करके वो आपको अलाउंस दे रहे हैं या बेनिफिट दे रहे हैं. So it is very important to be kept in mind. Depreciation is a mandatory claim. Okay, so you have to claim it. What are the conditions to be satisfied to claim depreciation? It should belong to any of the categories of the tangible or intangible that has been listed. We'll just go through the list now after we discuss this particular section. That उस list में आपकी asset जो है वो fit होनी चाहिए किसी ना किसी category में, otherwise आप उसका depreciation claim नहीं कर सकते हैं. And अब से we all know very well that goodwill के ऊपर depreciation भी नहीं मिलेगा. If the particular asset you are claiming depreciation, then it should be used for business. That is a compulsory condition. आपका अगर partly और अगर business वैसा use है तो depreciation भी आपको सिर्फ business use के जितना ही मिलेगा, पूरा 100% depreciation नहीं मिलेगा. The use can include both active and passive use. Passive use का मतलब होता है that the asset is not actively being used, but it is kept ready to be used for the purposes of business only. Then it is said to be in passive use. If the asset is in passive use, then also you can claim that depreciation for that asset. If the asset is purchased new during the particular year, अगर हमने उसी साल में उस asset को purchase किया है और हमने उसे use purchased and put to use for less than 180 days, then the depreciation will be only restricted to the 50% of the actual depreciation. तो अगर suppose हमने 170 days use किया है उस asset को खरीदने के बाद, जिस साल खरीदा है सिर्फ उस साल, हर साल ये चेक नहीं करना है. So जिस साल हमने खरीदा है अगर उस साल हमने उसे 170 days के लिए ही यूज किया है तो जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन होगा, फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, the depreciation will be charged only at the rate of 7.5%. If the use is of less than 180 days, the particular conditions should be satisfied to claim depreciation. Now when we compute depreciation under Income Tax Act, is very different from what we do in आर अकाउंटिंग टर्म्स. सो प्रैक्टिकली अगर कोई फर्म है या कंपनी है जो कि अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाती है, तो हर केस में आपको ध्यान रखना है, हर पीजीबीपी के क्वेश्चन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन होगा वो हटा दिया जाएगा और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो डिडक्ट किया जाएगा, बिकॉज इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अकाउंट्स के कैलकुलेशन से बहुत अलग है. बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली जो सोल प्रोप्राइटर्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है, वो क्या करते हैं अपने बुक्स में भी इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देते हैं ताकि डबल से दिक्कत नहीं हो कि इधर अलग कैलकुलेट करो इधर अलग कैलकुलेट करो. बट कंपनीज एंड ऑल जिनका खुद का एक अलग प्रोसीजर है, जिन पर एक लीगल एक्ट एप्लीकेबल होता है और जो एक्ट अलग से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने को बोलता है, तो हम अकाउंट्स में तो उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स में आपको यहाँ के प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट करना है. सो वील जस्ट अंडरस्टैंड इन क्विक what is the procedure to calculate depreciation. When we calculate depreciation as per Income Tax Act, the calculation is done as per the block concept. That means all the assets which are having the same category, which are of the same class and are having the same rate of depreciation are to be clubbed together and form a single group, single block. As soon as an asset forms part of a block, it loses its individuality. So अगर सारी machines हैं जिनके ऊपर 15% का रेट लग रहा है, वो सारी की सारी ब्लॉक में आ जाएंगी. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 10, जितनी भी मशीन्स हैं, एक सिंगल फिगर रहेगा, एक ब्लॉक का फिगर रहेगा और डेप्रिसिएशन उसी ब्लॉक पर लगाया जाएगा, इंडिविजुअल एसेट पर नहीं लगाया जाएगा. इंडिविजुअल एसेट हमको
सिर्फ तब कंसिडर करना है जब वो नया खरीदा है और 180 डेज चेक करने के लिए, अदरवाइज आप पूरा का पूरा ब्लॉक ऐड करके एक साथ पूरे ब्लॉक पर 15%, 10% जो भी रेट है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. Depreciation, when you are calculating depreciation, then you have to keep in mind that the rate has been prescribed by Income Tax Act. You cannot charge a rate of depreciation as per your own convenience. The particular asset जो आपका prescribed है वो जिस लिस्ट में फॉल होता है, उस लिस्ट में जो रेट ऑफ असेट दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, आपको उसी रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. मूविंग ऑन, additional depreciation, if the asset is if the business is in manufacturing or production or power generation and the particular person purchases new plant and machinery other than ships or aircrafts, then you can claim additional depreciation. Additional का मतलब ही वो है over and above. So ये जो हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है, हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमको मिलेगा ही मिलेगा इस प्लांट एंड मशीनरी पर, जो नॉर्मल रेट हमने बात करी, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम लोगों ने अगर असेट, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए हमने कोई असेट खरीदी है, तो हमको एक्स्ट्रा 20% का क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन. अगेन दिस इज अ वे टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग और यू कैन से द इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री, सो दैट आप डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा होगा, इसीलिए लोग उसमें इन्वेस्ट करना जो है वो शुरू करेंगे. न्यू प्लांट एंड मशीनरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. असेसी इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और पावर जनरेशन, अगेन यहाँ पर भी 180 डेज वाला रूल अप्लाई हो जाएगा. मतलब अगर हमारा लेस का केस है तो फिर हम 20 की जगह पर सिर्फ 10% का ही एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. बचा हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें नेक्स्ट ईयर दे दिया जाएगा, हम नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं. इफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द असेट इज सेकंड हैंड, द मशीन इज ऑफ ऑफिस यूज और रेसिडेंशियल यूज, इफ इट इज अ रोड ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर असेट, and if the deduction is allowed under any other section, then this will not be applicable. Now keep this in mind when you calculate depreciation under Income Tax Act. आपको बहुत बार assets की information दे दी जाती है, ठीक है. इस बार के ही इंटर के पेपर में अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने assets की information दे दी थी कि प्लांट और ये और ये और ये, और अब आपको depreciation कैलकुलेट करना है. सो कीप इन माइंड, सारे एक जैसे केस, एक जैसे क्लास और एक जैसे रेट को आप क्लब कर दोगे, ठीक है. सेकंड थिंग, इफ देयर इज अ न्यू एसेट देन यू हैव टू चेक फॉर 180 डेज कि 50% लगाएं कि पूरा लगाएं. थर्ड, if you have purchased a new asset, also keep in mind that if the assessee is engaged in manufacturing sector and the asset is in the nature of plant and machinery which is not second hand, it's a new asset, then you can also claim additional depreciation. So ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके फिर आपको डेप्रिसिएशन का चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना होता है. So ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है when you calculate depreciation. Keeping all these points in mind, only you can calculate the correct amount of depreciation that is allowed. So these are the conditions which we discussed in very like to the point points, because we are doing a kind of revision over here. But yes, while covering the whole syllabus, we have discussed all these in very much detail, and also I've made you solved questions of depreciation, if you all remember, right? So आगे चलते हैं. रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पर हम लोग को रेट्स का पूरा चार्ट दिया है, इनमें से कहीं ना कहीं हमारी असेट का फिट होना जरूरी है, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. देयर आर सम सेक्शंस, देयर आर सम लाइक यू कैन से केसेस जिनके रेट्स हम नॉर्मली याद कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देती हूँ. जैसे कि 10% यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वाज एन अमेंडमेंट इन लास्ट ईयर ओवर इन मोटर कार, सो देयर इज अ चांस कि यहाँ पर हमें मोटर कार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. द नेक्स्ट व्हिच इज वेरी कॉमन is this are books. This one, computers, books, these are quite common heads. Again, ऐसा नहीं कि इसके बाहर वो पूछ नहीं सकते हैं, वो तो इंस्टीट्यूट है, उनकी मर्जी, उनको जहां से पूछना है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, but there is a chance that these are asked. These are quite common things. and intangible का तो common rate है 25%. बस हमें ध्यान रखना है, goodwill is not allowed to be charged for depreciation. So these are the points to be kept in mind when you calculate depreciation. Now when you are calculating depreciation, हमने depreciation की calculation की बात तो करी, पर depreciation लगेगा किस पर, कौन सी चीज पर? तो हमारा depreciation पहले साल चार्ज किया जाएगा actual cost पर, and then after the next year, after the first year, it will be charged on the WDV, that is the book value. Can you charge depreciation in SLM basis? So no, that is not an option for you under Income Tax Act that हाँ SLM लगाएं कि WDV लगाएं. सिर्फ पावर सेक्टर अंडरटेकिंग को ऑप्शन दिया जाता है, अदरवाइज अगर मैं जनरली बात करूं सेक्शन 32 में, तो नो, देयर इज नो ऑप्शन. इन जनरल यू हैव टू कंपल्सरीली फॉलो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड फर्स्ट ईयर you have to calculate depreciation on actual cost. Now when I talk of section for actual cost,
it is very important again to understand how do you calculate the actual cost of asset. तो सेक्शन की लैंग्वेज पे तो जाएंगे, सेक्शन की प्रोविजन पे तो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, अगेन दिस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू डिस्कस्ड इन योर एएस व्हेन यू स्टडी इन योर अकाउंट्स, कि आप फिक्स्ड कॉस्ट की कॉस्ट कैसे निकालते हो, काफी हद तक उससे सिमिलर है। एक्चुअल कॉस्ट में आप उस असेट की परचेज प्राइस लोगे, ऑब्वियसली जितने में आपने खरीदा है, प्लस उससे रिलेटेड जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इनकर करे हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई सब्सिडी वब्सिडी आपको उस असेट से रिलेटेड मिली है तो वो आप माइनस कर दोगे, एंड ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड अगर इसमें मोर देन 10,000 कोई सा भी एक्सपेंस हुआ है, सिंगल पर्सन सिंगल डे, इन modes other than prescribed modes, that is account paycheck, account pay draft, ECS and any other electronic modes prescribed, then that expenditure is not treated as a part of your actual cost, so that people start to spend less of cash, so it will not be treated as a part of your actual cost. These points are to be kept in mind, very very important. So क्या बोला है देखें हम वापस, assessee means the actual cost to the assessee as reduced by the portion if met by any other person, that is what we mean as subsidy. And assessee incurs any expenditure for acquisition, then it has to be included in the cost, and if that expenditure exceeds 10,000 by any other modes other than prescribed modes, then it shall not form part of the actual cost. That means it will not be included in your actual cost, that means depreciation उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। देयर आर सम स्पेशल सिचुएशंस, अगर हमको एक स्पेशल सिचुएशंस में हमारी वो असेट है, मतलब अगर हमने परचेज नहीं करी है वो असेट, हमारे पास कहीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस से वो असेट आई है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे केसेस को लिस्ट डाउन किया गया है कि कौन से केसेस में हमारे पास असेट आ सकती है। सो अगर हमारे पास गिफ्ट इनहेरिटेंस से वो असेट आई है, तो प्रीवियस ओनर का जितना भी कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करके हम उसकी अभी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। अगर वो हमारा जो असेट है वो हमारे पास होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप के थ्रू, अमालगमेशन के थ्रू, डीमर्जर के थ्रू आया है, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज सेम। जो पुरानी बुक्स में डब्ल्यूडीवी थी उसी को हमारी बुक्स में डब्ल्यूडीवी मानकर आगे उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। एंड इन दिस केस if the asset is earlier it was used as per a section 34 AD asset, and now it has come to a normal business, then what will happen is to be discussed separately under section 35 AD. I will discuss that separately. Now one important point which is to be kept in mind relating to your actual cost is relating to the point that if the asset was previously used by any other business and now there is a case of amalgamation or something, so what is to be done, how will you calculate the depreciation, as the WDV set taken to be similar, so that we'll first discuss and then I'll move to the other points as well. So that important point which I'm going to discuss, 35 AD, I will be discussing along with section 35 AD only, so that will be very much easier for us to understand. Let us understand how do you calculate the written down value of the block of the asset. It is very easy. जो हमारा opening value of block था वो हम लेंगे, उसमें add करेंगे कि हमारे जो भी अगर हमने कोई assets purchase करी है, so opening balance of the current block, then if there is any new asset purchase, then you will take the actual cost of that asset, and actual cost कैसे calculate किया जाएगा वो हमने अभी अभी ऊपर बात करी है। reduced by any monies receivable in respect of any sale. Now see, यहाँ पर हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो असेट हम सेल कर रहे हैं, अगर हम हमारी ब्लॉक की कोई असेट सेल कर रहे हैं या पूरा का पूरा ब्लॉक सेल कर रहे हैं, whatever the case may be, हाँ इसमें कैपिटल गेन कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा वो हम कैपिटल गेन हेड के साथ ही पढ़ेंगे, वो मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रही। बट द पॉइंट इज कि if there is a sale from the block of the asset or the whole block is being transferred, then you are going to reduce that sale value from the value of block. So suppose there was a opening block of asset of say 40 lakhs, then you purchased, say for example, an asset of 10 lakhs, and out of the opening block you sell some assets which were sold for rupees 8 lakh. So you will deduct the monies receivable, that is the selling value of the assets that you have sold, and then once you calculate this, this is your closing block of value on which you will calculate the depreciation of whatever rate the particular block belongs to. So this is you are going to do WDV at the end of the year on which depreciation is to be allowed. So this is how you calculate the depreciation on the WDV of that particular block. Now
Moving on to composite income, we all know there is a case of composite income, but again, I will discuss this at the end because there is again a specific topic of composite income in the end. आफ्टर एट इन कंप्लीशन ऑफ पीजीबीपी हेड हम तभी इस बारे में बात करेंगे. अभी हम आते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर कि हमारे बुक्स में अगर सपोज हमारा डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है तो हम उसका क्या करेंगे. सो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है उसे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लिया जाता है. ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. Whenever there is a business loss, it is a different thing, and the unabsorbed depreciation is different thing. Both are treated as a separate amount because the rules regarding their carry forward and set off are different. If there is a business loss, it has to be set off within a period of 8 years, we all know, and under the head of income PGBP only. अगर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, आप बिजनेस इनकम के अलावा किसी और से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो. हाउएवर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर है तो आप उसको इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी डाउन फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड यू कैन सेट ऑफ टू इट विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम अदर देन सैलरी. भले ही वो पिछले 2 साल पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, बट आप उसको किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू कि पीजीबीपी इनकम से ही सेट ऑफ होना चाहिए, और हम उसको सैलरी हेड को छोड़ करके किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन देयर इज एनी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ योर करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, और क्योंकि वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया तो आप उसको इस साल की किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो. सो देयरफॉर व्हेनेवर देयर आर टू थिंग्स, you are having a PGBP loss and you are having a depreciation, unabsorbed depreciation, you have to give priority to set off your PGBP loss because there are restrictions on that particular loss. Depreciation will be set off later on. So there should be an order of set off. See, first of all, you will set off the current year depreciation. Obviously, पहले इस साल के सारे खर्चे set off होंगे. फिर अगर प्रॉफिट बचता है तो हम पिछले इसकी बात करेंगे. पिछले में पहले लॉस सेट ऑफ होगा क्योंकि इस पे 8 साल का रूल है और ये सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है. अगर मैंने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर दिया और मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया तो ये मेरा लॉस जो है वो पड़ा रह जाएगा. आगे साल में कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत भी आ सकती है और हो भी सकता है कि लैप्स हो जाए. सो बेटर है इसको पहले खत्म किया जाए, एंड फिर भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो देन यू विल रिड्यूस द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फ्रॉम दैट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. दिस इज हाउ you have to calculate the particular depreciation. Whenever I talk of 180 days, it is very important to be kept in mind that the days of 180 days are put to use, purchased and put to use. So whenever there are two different dates of acquisition and you put to use given in the question, you have to consider the date of put to use to check that whether the particular asset was put to use for a period of more than 180 days or less than 180 days. This is to be kept in mind. It is a very, very important point to be considered. So with all these points to be discussed, we complete our depreciation, that is section 32, which is a very very important section. So अगर हम बात करें तो बहुत लेंथी सा सेक्शन था, लेकिन short to put the long story short, it was a very simple section also because उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत सारे ध्यान रखने हैं. एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालनी चाहिए, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, ब्लॉक कैसे निकालना है, लेकिन अल्टीमेटली है बहुत सिंपल. हम डेप्रिसिएशन बचपन से पढ़ते आए हैं तो हमारी ब्लॉक की वैल्यू निकाली जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन का रेट लगाया जाएगा और हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जाएगा. Moving on to the next section, that is section 35, that is expenditure on scientific research. Again, it is a very simple section. When you are a business who is first either engaged in the business of scientific research or any kind of biotechnology, or you are a person second who is not engaged in the business of scientific research but who is investing, who is paying money to a company or an organization or any university which is engaged in some kind of research or scientific research, then you can claim the deduction of that particular money. The reason behind this section is again similar, that the country wants कि लोग scientific research और development पे country में investment करें ताकि नए नए experiments हो, नए नए हमारे पास भी कोई, जैसे आप रिसर्च कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी को हम मतलब ग्रो कर सकते हैं, कोई नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो सकती है हमारी कंट्री में, तो उस सब के लिए भी पैसा यूज हो. इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 35 इन्वेंट किया है जिसमें कि 100% डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर मिलता है. अर्लियर दिस सेक्शन यूज्ड टू गिव वेटेड डिडक्शंस एज वेल. वेटेड डिडक्शन मतलब जितना आपने पे किया उससे ज्यादा आपको डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब हमने यहाँ पर सब जगह पर वो चीज हट चुकी है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कीप इन माइंड दैट ऑल द केसेस आर 100% ओनली. तो पहली चीज तो जितना पे किया पूरे का खर्चा मिल रहा है, उससे ज्यादा का खर्चा नहीं मिल रहा है. दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है, अब आप देखोगे तो सब जगह 100 100 ही है, तो आपको लगेगा यार इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, जितना साइंटिफिक
रिसर्च के लिए खर्च किया, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है, क्योंकि जितना हमने पे किया है पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि पहली चीज किस किस को डिडक्शन मिलेगा, सेकंड थिंग कि किस चीज का डिडक्शन मिलेगा, क्या कैपिटल रेवेन्यू दोनों का डिडक्शन मिलेगा। सो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। सो company engaged in the business of biotech or in the business of manufacturing of any article and an in-house research and development facility, 100% expenditure other than land and building incurred by any other assessee on scientific research related to business, any other assessee which is doing a scientific like a business is related to scientific research और उसने खुद के business के लिए कोई revenue या capital expenditure किया है, उस पूरे का deduction मिल जाएगा। other than expenditure on land एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट केस कि आपका खुद का बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का नहीं है, लेकिन आपने किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया है जो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, देन अगेन you can claim the deduction for that particular payment 100% of the sum paid। so किस किस को पेमेंट कर सकते हो? जैसे मेरा बिजनेस जो साइंटिफिक रिसर्च का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं सेक्शन 35 में डिडक्शन लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो जैसे एक बात होती है चैरिटी की, अगर आपको चैरिटी करनी है तो आपको एनजीओ खोलना जरूरी नहीं है, आप किसी एनजीओ को दान दे देते हो तो भी आपके लिए चैरिटी हो गई वो एक तरीके से। सिमिलरली अगर आप खुद साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड नहीं भी है, फिर भी अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई योगदान देना चाहते हो और उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, आप किसी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी में पेमेंट कर सकते हो जो साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज्ड है, आप किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएशन में इन्वेस्ट कर सकते हो जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करता हो, कोई भी ऐसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल लैबोरेटरी विच इज एंगेज्ड इन सोशल, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ऑल दीज कैन बी यू कैन पे अमाउंट टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस और इनके ऊपर आपको पूरा पूरा आपने जितना भी सम पे किया है यू कैन क्लेम दैट एज डिडक्शन। So all these points are to be kept in mind whenever there is a revenue expenditure. If you have incurred any revenue expenditure for your own business, if it has been incurred not necessarily only in that particular year, but if it is even incurred before the commencement of that particular business, it can be claimed as deduction in the year in which the business is commenced, provided that the expenditure you have incurred is related to purchase of materials, or you can say एनी काइंड ऑफ सैलरी और एक्सेट्रा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप कोई साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कभी कभी ये होता है कि यार बिजनेस शुरू करना है कि नहीं करना है। सपोज आप कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा रिसर्च करके समझ में आया कि यार ये टेक्नोलॉजी का तो कुछ यूज नहीं निकलेगा, मतलब इतना बड़ा कुछ हम लोग के दिमाग में जो आइडिया था वो फीजिबल नहीं है, तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा रिसर्च किया, फिर आपने सोचा कि यार नहीं इसका आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है, तो आपने बिजनेस शुरू कर दिया, है ना, आपने धीरे धीरे करके इस रिसर्च को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, तो बिजनेस शुरू करने से पहले का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड वो पिछले 3 सालों में ही हुआ हो, इसी बिजनेस से रिलेटेड हो, और सैलरी नेचर का हो, मटेरियल वगैरह खरीदने का जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका भी डिडक्शन आपको अलाउड होगा, लिमिटेड टू द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। सिमिलरली अगर ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है वुड बी डिडक्टेबल इन फुल। अगर प्रायर टू कमेंसमेंट का है, सेम चीज है यहाँ पर भी, 3 years इमीडिएटली अगर किया है हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू दैट बिजनेस, द एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च विल बी अलाउड। जिस साल हमारा बिजनेस कमेंस हुआ है उस साल हमको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लैंड के ऊपर हमको कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी असेट की वैल्यू हमको डिडक्शन मिल चुका है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट में से वो डिडक्शन हटा दिया जाएगा, सो हमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक ही चीज का दो दो बार बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज सेक्शन 35। उन्हीं चीजों को मॉड्यूल में इलॉबरेट करके दिया है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन शॉर्ट। पॉइंट याद ही आपको रखना है, साइंटिफिक रिसर्च अगेन अ वेरी सिंपल सेक्शन, सिर्फ छोटी सी चीज याद रखनी है। बोलो क्या करोगे? पहली चीज, या तो हमारा खुद का बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट है, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, डिडक्शन इज अलाउड। या फिर हमारा कोई नॉर्मल हम बिजनेस कर रहे हैं, इनकर्ड बाय the assessee for its own business, capital or revenue other than land, and then moving on to our any person who has paid the money। हमारा खुद का बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का नहीं है, लेकिन हमने किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करी है जो साइंटिफिक रिसर्च में काम करता है, तो भी कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई लैबोरेटरी हो, कोई इंडियन कंपनी हो, ऐसे जगह पर अगर हमने पेमेंट किया है जो साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज है,
है तो हमारे पूरा का पूरा अमाउंट का 100% का हमें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा. सो दीज पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सेक्शन 35. सी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है. प्रैक्टिस के लिए हम सारे इलस्ट्रेशंस को भी एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं. खैर आई एज्यूम अब आप लोगों ने वो सब चीजें तो कर ही ली होंगी, सारे इलस्ट्रेशंस को एक बार सॉल्व करके देखा ही होगा. Moving on to the next section, that is section 35 AD, again one of the specified sections which is very very important for the upcoming examination, which is the last section as well for our syllabus of specified sections. मतलब 35 के जो भी हैं वो सारे specific कुछ important sections हैं. तो हमारे syllabus में जो है सो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, अगेन जो सारे सेक्शंस हमको ऐसा लगता है बहुत बड़े से हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हैं, पता नहीं इसमें क्या है, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल मीनिंग्स एंड जस्ट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी. सेक्शन 35 एडी हमें डिडक्शन देता है ऐसे एक्सपेंडिचर्स, ऐसे बिजनेसेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, जो एक स्पेसिफाइड लिस्ट है बिजनेसेस की, अगर हमने उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है तो आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू दैट बिजनेस, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा 100%. सो देयर इज अ लिस्ट, सी दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. अगर हमने इनमें से किसी भी बिजनेस के को स्टार्ट करा है, इसमें इन्वेस्ट करा है, तो हमारा जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका हमें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन. सो बोलने के लिए सेक्शन 35 एडी साउंड्स की समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज वेरी सिंपल. इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज बिजनेसेस, then you can claim deduction up to 100% of your capital expenditure. However, the expenditure should not be on land, goodwill or any financial instrument. Obviously वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई एसेट होनी चाहिए. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदना, लैंड खरीदना, इससे आपका कोई मतलब प्रोडक्शन इन द सेंस आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट होनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर हमें डिडक्शन नहीं मिलता. एंड मूविंग ऑन टू द that if again the same thing जो हमने एक्चुअल कॉस्ट में पढ़ा कि अगर 10,000 से ऊपर का एक्सपेंडिचर है, excess of 10,000 in a single person single day, and that amount has been incurred by any other mode other than account paycheck, account paid draft, ECS or any other mode of payment, then that particular amount would be not considered as a capital expenditure. उसको आप एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड नहीं करोगे, सो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा. अगेन यहाँ पर भी जैसे हमने सेक्शन 35 में बात करी कि बिजनेस शुरू होने से पहले का अगर कोई खर्चा है तो हाँ हम उसको डिडक्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट. कमेंसमेंट के दिन पर वो बुक्स में कैपिटलाइज होना जरूरी है, तो ही हमें उसका डिडक्शन मिलेगा. ऑल दीज कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड. कोई पुराने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करके, स्प्लिट अप करके ये बिजनेस सेटअप नहीं होना चाहिए. कोई ट्रांसफर ऑफ असेट्स से, ये जो मान लो कोई असेट्स थी जो पहले कहीं और किसी और बिजनेस में यूज हो रही थी, हमने वहां से वो असेट्स उठाकर इस बिजनेस में डाल दी ताकि हमको डिडक्शन मिल जाए, ऐसा कंडीशन नहीं चलेगा. 20% तक उन्होंने लेवरेज दिया है, उसके ज्यादा अगर हम कोई ट्रांसफर करते हैं तो देन इट इज नॉट अलाउड. Plant and machinery would not be regarded as previously used if it has been used outside India by any other person and that was not used for purpose in India and it is imported and no deduction of depreciation is allowed. तो अगर ये conditions fulfill होती है तो उसको previously used नहीं मानेंगे, मतलब उसको second hand नहीं माना जाएगा अगर ये सारी conditions fulfill हो जाती हैं तो. ठीक है, so these points are to be kept in mind. Moving on to the next conditions, नो डिडक्शंस अलाउएबल अंडर एनी अदर एक्ट. अगर आप इसको 35 एडी में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा. कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस है तो वो जो लॉस होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दिस बिजनेस. बस शर्त ये है कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो दूसरा बिजनेस है उसे डिडक्शन मिल रहा है कि नहीं. दो अलग अलग बातें हैं. देखो, अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसे 35 एडी का डिडक्शन मिल सकता है, मिले ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस होता है और दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. इस बिजनेस को 35 एडी का डिडक्शन मिले ये जरूरी नहीं. ठीक है, सो क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, irrespective of whether the latter is eligible for deduction under section 35 AD. This is a very very important point to be kept in mind. So all these points are to be considered when you are calculating the deduction. Again मैंने इस चार्ट में 35 AD का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब easy to understand मैंने सारे पॉइंट्स लिख करके रखे हैं. So if for reference you can have this PDF as well, otherwise you can just note it down from the screen कि शॉर्ट में मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें लिख दिया है कि आपको कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना है अगर आपको सेक्शन 35 AD का डिडक्शन लेना है तो. अगेन this particular asset which has been purchased for the purpose of section 35 AD has to be used for this particular business for 8 years. अगर हमने 8 साल के पहले इस असेट को बेच दिया
या फिर कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज कर दिया, तो हमारा जो डिडक्शन है वो हटा लिया जाएगा. सो बेसिकली दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस. इफ द असेट इज डिमोलिश्ड और ट्रांसफर्ड, जिस पर्टिकुलर इन असेट को 8 साल के अंदर अंदर हमने अगर बेच दिया, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमको डिडक्शन मिला है, इफ दैट पर्टिकुलर असेट इज डिमोलिश्ड एंड इन दैट पर्टिकुलर केस दैट द अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड, जो भी अमाउंट हमको रिसीव हुआ है उस असेट को बेच करके, वो सारा का सारा हमारे सेक्शन 28 में, इफ यू रिमेंबर मैंने सेक्शन 28 में आपको बोला था ये पॉइंट हम 35 AD के साथ डिस्कस करेंगे. तो आपको ये असेट अगर आप बेचते हो जिस पर डिडक्शन मिला है, देन दैट अमाउंट हैज टू बी कंसिडर्ड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 28. देन यू हैव टू claim that this is an income under this particular head. यहाँ पर हमारा 8 साल वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर उन्होंने कंसिडर नहीं करा जाएगा. ठीक है, 8 साल वाला पॉइंट क्या है वो हम समझते हैं. देखो आगे क्या बोला है, असेट यूज्ड फॉर एनी अदर बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द 8 years. मतलब हमने क्या किया, 8 साल के अंदर अंदर उस असेट को किसी और बिजनेस के लिए यूज कर लिया. तो अगर हम सेल कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन 8 years हो या मोर देन 8 years हो, आपको सेक्शन 28 में उसको चार्जेबल करना है. अगर 8 साल के अंदर अंदर हमने उसको बेचा नहीं, लेकिन हमने किसी और बिजनेस के लिए उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया और हम पहले 35 AD का डिडक्शन क्लेम कर चुके थे, तो क्या किया जाएगा, एक तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन की चीज हो जाएगी. द पर्टिकुलर एसेट विल बी ट्रीटेड एज इफ उसमें कभी कोई डिडक्शन मिला ही नहीं था. तो जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उसको इस पर्टिकुलर पीरियड का क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा. सो क्या बोला है देखो, इफ एसेट इज यूज्ड फॉर एनी, सो इट विल बी कैलकुलेटेड एज इफ हमें पहले डिडक्शन कभी नहीं मिला होता. तो क्या होता, 50 lakhs, and you had claimed deduction of section 3D in that particular year. After 3 years you switch that particular asset and you take it into any other, हमने उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन मिल रहा होता एज पर द रेगुलर रूल्स, बाकी पूरे 50 lakhs का डिडक्शन हमें नहीं मिला होता. सो व्हाट वुड बी डन, इट वुड बी कैलकुलेटेड दैट एज इफ द असेट वाज originally computed under the normal business head, that is not under the specified business head, and that particular amount would be treated as income in the hands of the specified business, that is 35 AD. So what you will be doing, see, the total amount of deduction so claimed and allowed in any previous years in respect of such asset as reduced by the amount of depreciation allowable as if no deduction had been allowed under section 35 AD shall be यहाँ पर मतलब जो 35 AD का मैं 35 AD के साथ ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि क्या होता है, हम जब एक्चुअल कॉस्ट पढ़ रहे थे तब हमने अक्विजिशन हम कितना मानेंगे इस असेट को. तो सपोज आज तक जितना भी 3 साल हुआ है, से फॉर एग्जांपल आपको 15 lakhs का डेप्रिसिएशन मिल चुका होता एज पर द रेगुलर रूल्स. सो 50 lakhs माइनस 15 lakhs का जो अमाउंट आएगा आपका, दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम for the specified business because you have we have broken the condition of 8 years, and this will be treated as a book value of the asset for the non specified business, जिस पर आगे से आपको क्या मिलेगा, depreciation. Moving on to the next provision. So these are the sections under section 35 which are to be discussed. As I told you, जो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें ये सारी चीजें आपको शॉर्ट में मिल जाएंगी. Now they have also given one more section of 35, that is 35D, amortization of preliminary expenses. So 35, 35AD, and the next they have given is 35D. I hope you all know what is preliminary expense. So amortization of preliminary expense अगर होता है तो इनकम टैक्स में उसके क्या रूल्स हैं. So अगर कोई इंडियन कंपनी है या फिर कोई भी रेसिडेंट है, सी very important to be kept in mind. So this particular section applies particular case में अगर आप नई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, उस नई यूनिट को सेटअप करने के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे एक्सपेंडिचर को आप वन
the amount for eligible for deduction. So in case of company, then your 5% of as deduction, or otherwise amount that would be allowed as deduction, and the so these are the limits under which the reduction can be claimed under section 35D. Moving on to the next condition for 35D. What are the conditions? In case where the assessee is a person other than a company, the deduction would be allowable only if the accounts have been audited. तो अगर हमारा ऑडिट हुआ है तो ही हम डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन. एंड अगेन जैसा हमने पहले भी पढ़ा, 35AD में भी पढ़ा, 35 में भी पढ़ा, अगर इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिल रहा है तो किसी और एक्ट, किसी और प्रोविजन में इसी एक्ट के हमें कोई डिडक्शन भले ही नहीं मिलेगा, भले ही हमारा कंडीशन सिमिलर हो रहा हो. सो दिस इज to be a point that is to be kept in mind in almost all the cases, that if for the same expenditure you are claiming a deduction in some particular section, then you cannot claim the deduction in any other section. Lastly, voluntary retirement scheme, अगर आपने स्कीम अपने ऑर्गेनाइजेशन में दी है तो उससे रिलेटेड जो भी डिडक्शन है, विच इज इफ यू हैव लाइक एनी अमाउंट दैट यू हैव पेड रिलेटिंग टू द VRS, then it can be claimed as deduction again 1/5 of the amount paid for 5 years, that is to be डिडक्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगेन अगर इस सेक्शन में डिडक्शन मिलता है तो किसी और सेक्शन के किसी और प्रोविजन में आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा. अदर डिडक्शन सेक्शन 36, दिस इज अगेन अ वेरी लाइक यू कैन से a section which is quite open, or you can say in which a lot of other mixed deductions are allowed. That is why the name of the section is also as other deductions. So what are the deductions allowed in the section 36? Insurance premium that you have paid. Now again, if we go through our notes, the section has been arranged very like easily so that it becomes easy to understand. So section 36, other deduction, the deduction for insurance expenses is allowed for our stock insurance, for any federal milk cooperative society, any cattle insurance etc taken by any federal milk cooperative society, and insurance paid by the employer for the employee if it is under a scheme which is approved by IRDA or central government scheme, plus it should not be in cash. So if all these conditions are fulfilled, then you can claim deduction for the insurance premium paid. Bonus commission paid to the employees is allowed as deduction under section 36, provided it is not payable as dividend. That amount which you are paying as a bonus to an employee should not be otherwise payable as a dividend. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर हम बोनस की तरह नहीं दें तो हम उसे डिविडेंड की तरह दें तो उसे डिडक्शन अलाउड होगा, अदरवाइज डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. इंटरेस्ट इन बोरोड कैपिटल after put to use. This is again a very important point which I did not discuss at the time of 43(1) again because it was going to be discussed under section 36. Whenever you purchase any asset, any fixed asset, and if you are taking any a loan for that particular asset, then interest on that loan, will it be capitalized or it will be taken as a revenue expenditure, depends. That is the particular interest relating to the period before the asset was put to use or after the asset has been put to use. If the interest is for the period before the asset is put to use, for example हमने construction of an asset के लिए लोन लिया है, जब तक वो asset put to use में नहीं आ जाती उतने period का interest capitalize किया जाएगा asset के actual cost में, और after the asset has been put to use it is not allowed to be capitalized, it will be treated as a revenue expenditure. So you have to keep this in mind, that then if that particular asset will not be treated as a then that particular interest will not be capitalized if the asset has been put to use. Next is any expenditures that relating to employee. Now here it is a very important point to be kept in mind that there are some specific very particular adjustments or very particular expenditures that are to be understood. Contribution to provident fund and any other funds. So employer ने employee के behalf पर अगर PF में या कोई recognized fund में अगर payment किया है तो उसका deduction मिल जाएगा. Employer's contribution to the account of an employee under a pension scheme, that is NPS में अगर आपने आपके employee के नाम पर contribution किया है आपको deduction मिल जाएगा. However, it will
अप टू ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, जितना भी आपने पेमेंट किया है उसकी सैलरी का 10%। एंड अगेन सैलरी की डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ प्रिस्क्राइब करिए, जैसे हम सैलरी हेड में देखते थे हर स्पेसिफिक प्रोविजन में हमको सैलरी की एक अलग डेफिनेशन दी हुई होती थी, वैसे यहाँ पर भी सैलरी की एक अलग डेफिनेशन दी गई है। इट इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस इफ द टर्म्स सो प्रोवाइड एंड एक्सक्लूड्स ऑल अदर अलाउंसेस एंड perquisite, so you can claim deduction but only up to 10%. Next is the amount received by assessee as contribution from his employees will be allowed. Now this is a very important point and इसमें हमें इस particular period में एक छोटा सा clarification भी रिलीज किया गया था बजट में, so that is also that becomes very important कि इस पर हमें क्वेश्चन आ सकता है। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर ने खुद का जो कंट्रीब्यूशन पे किया उसका तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वेन एवर यू टॉक ऑफ ऑल दीज वेलफेयर फंड्स, आपके दो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है दो अलग अलग बातें हैं। एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसका डिडक्शन तो आपको मिलेगा, ठीक है, आपका एक्सपेंस है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नॉर्मली क्या होता है कि आप एम्प्लॉय से लेकर के और फिर उस फंड में जमा करते हो। वेन यू टेक दैट अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। जब तक आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया है आप उसको अपनी इनकम मानते हो, ठीक है। और अगर आपने उसको डिपॉजिट कर दिया तो आप उसको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो ताकि वो आपकी इनकम से हट जाए। नाउ दिस टेक्स टू अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 ओनली इफ दिस अमाउंट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रेलेवेंट एक्ट। मतलब अगर हम पीएफ की बात कर रहे हैं तो पीएफ एक्ट की जो ड्यू डेट है, हम किसकी बात करें, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अगर वो कंट्रीब्यूशन पीएफ एक्ट की ड्यू डेट के अंदर जमा हो गया सरकार के पास तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है हमें सेक्शन 43 बी में। आई डिस्कस दिट विद दिस व्हेन वी विल डिस्कस सेक्शन 43 बी कि हमें स्पेसिफिकली ये तभी अलाउड होगा जब उस एक्ट की ड्यू डेट के अंदर होगा। अब 43 बी से इसका क्या रिलेशन है वो हम 43 बी के साथ समझेंगे, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा ओनली इफ इट इज पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ द रेलेवेंट एक्ट। ओके, चलिए बैड डेट्स का बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। बैड डेट अगर आप डिडक्ट कर सकते हो तभी कर सकते हो अगर वो कभी ना कभी आपकी इनकम का पार्ट हुए हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअल बैड डेट अलाउड होंगे अगर वो कभी ना कभी पहले हमारी इनकम का पार्ट हुए हैं तो, अदरवाइज उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और आगे चल करके अगर कभी आपके बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो देन दे बिकम अ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अंडर द सेक्शन 41। ओके, मूविंग ऑन, फैमिली प्लानिंग के लिए अगर कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया है ओनली कंपनीज के लिए अलाउड है। फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉइज तो वो आपका अलाउड होता है ओनली टू द कंपनीज एंड इट इज अलाउड provided that 1/5 if it is capital expenditure, 1/5 for 5 years, and if it is a revenue expenditure then it can be claimed in the specific head. Deduction of STT and CTT, this is again a very important point. CTT STT का डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा अगर ये इनकम आपके लिए बिजनेस इनकम है। मतलब आप शेयर ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग को अगर आपका बिजनेस ट्रीट कर रहे हो, अगर आप इस इनकम को पीजीबीपी हेड में ऑफर कर रहे हो तो ही आपको एसटीटी सीटीटी का डिडक्शन मिलेगा। इफ दिस इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल gain then CTT STT is not allowed as deduction. Okay, so these points are to be kept in mind. Moving on to the last section of deduction, that is section 37, which is a residuary section. कोई सा भी ऐसा खर्चा जो 30 से लेकर के 36 तक नहीं आया है उसका डिडक्शन आप 37 में क्लेम कर सकते हो। There are some specific conditions which are to be fulfilled for section 37 to be considered, so that should not be of the nature which is described in the section 30 to 36. It should have been incurred by the assessee. आपने खुद ने खर्च किया है, आपके ही बिजनेस के लिए खर्च हुआ है, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए और शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड फॉर एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं तो ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है अंडर सेक्शन 37। नाउ अगेन यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन में कुछ अमेंडमेंट्स हैं छोटे से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन 1 स्टेट्स दैट एनी एक्सपेंडिचर बाय असेसी विच इज एन ऑफेंस shall not be allowed as deduction। इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन 3 और एक डाला गया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन एक्सपेंडिचर incurred which is an offense or which is prohibited by law shall include and shall be deemed to have always included। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि पहले से, हमेशा से, जब से ये पर्टिकुलर प्रोविजन आया है तब से
हमेशा ये पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड रहे हैं. एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस टाइम बीइंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया टू प्रोवाइड फॉर एनी बेनिफिट इन वॉट एवर फॉर्म टू अ पर्सन whether or not carrying on a business, a profession, and acceptance of such benefit by such person is in violation of law, as the case may be, governing the conduct of such business. जैसे हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैसे ही बहुत सारे प्रोफेशंस पर होता है. अगर आपके कोड ऑफ कंडक्ट में भी वो पैसा लेना गलत है, अगर ऐसा बोला गया है कि वो अमाउंट या बेनिफिट या परक्विजिट लेना, तो आप जिस पर्सन को पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, अगर वो पर्सन के कोड ऑफ कंडक्ट उस पैसे को लेना अलाउ नहीं करते, तो भी आपके ऊपर वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा. एंड टू कंपाउंड एन ऑफेंस, अगर ऑफेंस की कंपाउंडिंग के लिए आपने किया है तो भी आपको वो अलाउड नहीं होगा. सो ये देखो एग्जाम्पल भी दिया है. इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, these expenses are in violation of the provisions of medical counseling, जो एथिक्स लगते हैं डॉक्टर्स के ऊपर. इसीलिए उस एक्सपेंडिचर को आपके हाथ में क्या बोल दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर दिया जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीएसआर एक्सपेंडिचर. हम सब जानते हैं सीएसआर क्या होता है, बिकॉज सेक्शन 37 क्लियरली बोलता है कि एक्सपेंडिचर शुड बी directly related to your business, wholly and exclusively incurred for your business, and CSR expenditure is not related to your business. So CSR expenditure का deduction 37 के अंदर भी नहीं मिल सकता है. If advertisements are done for the political parties, any amount done for the advertisement expenses or contribution made for any political party will not be allowed as deduction. So all these conditions are to be checked. This we discussed expenditures that are allowed. Again, I'll put a reminder, 30, 31, 32, 35 के specific sections, 36 और 37 इतने हमारे सिलेबस में है. हर एक्सपेंडिचर का सिर्फ मेन पॉइंट याद रखो कि कौन से कंडीशंस में एक्सपेंडिचर अलाउड होगा. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उस एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी P&L में अलाउ कर चुके हो, देन देयर इज नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दी क्वेश्चन. इफ दैट इज नॉट अलाउड, if that is not deducted, then you can deduct it in the books of accounts. And if it is not allowed, जैसे पर्सनल नेचर का है और आपने डिडक्ट कर रखा है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा. With this we complete all the expenditures that are deductible. Now we'll move on to the expenditures that are disallowed under the income tax.